Hello, my dear students. Good morning to all. Now today we will study symmetry. Symmetry already in last year you have studied in the third standard. You may symmetry means what? Exactly meaning of symmetry means two equal half. Symmetry means equal half. Two, if figure is divided into two parts, then each part will be exactly equal. Such figures were called. For example, this smiley face. This smiley face has been divided into two equal parts, exactly two equal parts. So that's why we can say this is an example of smiley face is an example of symmetry. A figure or an object is symmetrical if both of its half are just the same in size and shape. Here half, because of this vertical line, this smiley face has been divided into two parts, two equal parts. This side and this part, both are same. So the figures are said to be symmetrical if both are said to be what? Where gone? A figure or an object is symmetrical if both of its half are just the same in size and shape. Understood? Example of this symmetry of butterfly and mouth are symmetrical. Understood? They have two equal and similar sides. In your textbook it is given this butterfly and this MONTH. What it is written there? Butterfly and this. Two things are the examples of this, but are the example of symmetry. For example, this side and this. These are the, if we are holding that one, exactly we are getting this side and this side, same thing. So that's why this is an example of symmetry. In the same way, butterfly if divided into, if butterfly here also, if we are drawing here line of symmetry, we are getting exactly two equal parts. So that are the examples of symmetry. Now there are two types of symmetry. Line of symmetry, two types of line of symmetry. One is vertical and other one is horizontal. First of all, we will study vertical line of symmetry. What do you mean by vertical? Now suppose this is the kite and this line has been divided into, because of this line the kite has been divided into two equal parts. So this line is called the line of symmetry. Now this line is called vertical line of symmetry. Vertical symmetry means the left half of the object will be the same in size and shape as the right half when divided vertically. This left side and right side should be equal. Understood the meaning of that? The line that divides an object or a shape into two equal half from top to bottom is called the vertical line. For example, this figure, square or rectangle, square. Now because of this line of symmetry, left and right sides are, because of this drawing this line of symmetry, we are getting two equal parts, left side and right side, and both are equal. This object have vertical line of symmetry. This is vertical line of symmetry. Sometimes in figure you may get two line of symmetry, sometimes three line of symmetry. According to, based on that figure we can say that one. But here rectangle is supposed there. Square we are getting not only this is vertical as well as horizontal also we can get there. But if we are drawing vertical line, then we are getting two exact. This side इधर वाला figure और उधर वाला same रहेगा. So that's why we can say that these are the vertical line of symmetry. After this, we will study horizontal line of symmetry also. Okay. So note down this one. Now we will study horizontal symmetry. Horizontal symmetry means what? This, if a figure is given and this type of line is drawn, that line is called horizontal line. This line is called horizontal line. Horizontal symmetry means the top half of the object will be the same in size and shape as the bottom half when divided horizontally. टॉप हाफ ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, ये लाइन के वजह से दो इक्वल पार्ट हो गए है ना. लेफ्ट ये है राइट. द लाइन दैट डिवाइड्स ए शेप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. लेफ्ट ये राइट है. अब ये लाइन की वजह से इस फिगर के दो इक्वल पार्ट्स हो गए. सो सच टाइप ऑफ लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल सिमेट्री. वी कैन से दैट वन. ओके, अंडरस्टूड? और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. सो नोट डाउन दिस वन. लेट अस प्रैक्टिस 6.8 is the dotted line a line of symmetry? Right? Yes or no? जो डायग्राम दिया है ये ट्राइंगल है और ये डॉटेड लाइन के लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये इधर वाला पार्ट ज्यादा है. दो इक्वल पार्ट चाहिए. लाइन ऑफ सिमेट्री में दो इक्वल पार्ट्स होते हैं. इधर वाला पार्ट ज्यादा है, इधर वाला कम है. तो यहाँ पर ये डायग्राम में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ लिखना है हमें नो. जहाँ पे है वहां पर यस लिखना है. ओके. नाउ ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ दिस. Here again given ABCD like that. One example only I am explaining. अब यहाँ पर पूछा है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. वर्टिकल कैसा होता है?
खड़े में, तो हमें ताकि वो डायग्राम के 2 इक्वल पार्ट होना चाहिए, जैसा ये दिस डायग्राम इज गिवन, वी हैव टू ड्रॉ वर्टिकल लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ऑफ दिस vertical line of symmetry this diagram has been divided into 2 equal parts. Okay, like that. This is called vertical line of symmetry. Now next, draw a horizontal line of symmetry for each of the following. Horizontal मतलब क्या, कैसे रहेंगे, आड़े में, तो ये अभी आड़े में हमें लाइन निकालना है, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट होना चाहिए बिल्कुल. So in this way डॉटेड लाइन निकालना है हमें, ठीक है. दिस लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. अंडरस्टूड? सो नोट डाउन दिस वन. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन. नाउ आफ्टरवर्ड वी विल स्टडी व्हाट, एक्सरसाइज. नाउ वी विल स्टडी एक्सरसाइज. फर्स्ट एग्जांपल लुक दैट. दोज एग्जांपल यू आर एबल टू सॉल्व दैट वन. You have to do remaining example. Some example are typical. I will solve that question. Example number first. Classify the angle whose measure are given below as acute, right, obtuse, straight, reflex, or complete. All that things such example over. Right acute angle means an angle whose measure is less than 90 degrees is called acute angle. Right angle means an angle whose measure is exactly 90 degrees is called right angle. Obtuse angle means an angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 degrees is called obtuse angle. And straight angle means an angle whose measure is exactly 180 degrees is called straight angle. Reflex angle, an angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degrees is called reflex angle. And complete angle means what? An angle whose measure is exactly 360 degrees is called complete angle. Now 123. First look at 123 degree given. So which type of angle? It is more than 90 degree. So it is an obtuse angle. What you have to write? Obtuse angle. In this way you have to complete that one. Second, diameter of a circle is 22 centimeter. Find it radius. Diameter given, radius you have to find. You know that radius of circle formula. Radius of circle equal to diameter divided by 2. So diameter value given here 22. 22 divided by 2 means 11. Half. Diameter का आधा क्या आएगा? Radius. 22 diameter है तो फिर radius उसका half 11. Third question, radius of a circle is given 30 centimeter. Find it diameter. Now here radius given 30 centimeter. What you have to find? Diameter. So what is the formula for finding diameter of circle? Diameter of circle equal to 2 into radius. 2 into radius value given 30. 2 into 30 60. Radius का डबल रहेगा diameter. ठीक है, जब radius 30 है तो diameter 60 आएगा उसका. Now fourth question, draw a circle of radius 2 centimeter in your notebook. Draw diameter AB. How many semicircle do you get? Show them by different color. ये भी एग्जाम्पल हो चुका है एक्सरसाइज में. सबसे पहले आपको सर्कल निकालना है 2 सेंटीमीटर रेडियस लेकर 2 सेंटीमीटर का सर्कल निकल, तो उसका डायमीटर आएगा 4 सेंटीमीटर. फिर उसमें डायमीटर बताना है, शो करना है AB. हाउ मेनी सेमीसर्कल डू यू गेट? यू विल गेट देयर 2 सेमीसर्कल. शो देम बाय डिफरेंट कलर. फिर उसको अलग अलग कलर में आपको शो करना है. फिफ्थ एग्जाम्पल, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 12 मीटर एंड 10 मीटर रेस्पेक्टिवली. फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया. लेंथ एंड ब्रेथ, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया है, फिर पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का. सो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ. 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ की वैल्यू है 12, ब्रेथ की वैल्यू है 10. 12 प्लस 10 22. 22 इंटू 2 क्या आएगा आंसर? 44. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ. 12 मीटर इंटू 10 मीटर. 12 टेंस आर 120 मीटर स्क्वायर. समझ में आया? नाउ सिक्स्थ एग्जांपल, साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 मीटर. फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया. अब स्क्वायर दिया है, स्क्वायर में साइड की वैल्यू, एक साइड की वैल्यू दिया है 40 मीटर. रिमेनिंग 3 साइड वैल्यू will also be 40 meter only, because in a square all sides are equal. Now it is asked find it perimeter. So perimeter of square equal to formula 4 into side 4 into 40. 4 into 40, 4 4 are 16 and 1 0, 160 मीटर. ये पेरीमीटर हुआ. उसी ढंग से अभी क्या फाइंड करना है? वहां पूछा है एरिया. अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड. 40 into 40, 4 4 are 16 and 2 0, 1600 meter square. Like that you will get after solving. Next, seventh example, Tina runs along the boundary of a square garden of side 35 meter. What distance, total distance will she cover in 3 rounds? Also find the area of the park. अब स्क्वायर गार्डन है और टीना रन कर रही है उसमें, और स्क्वायर गार्डन की साइड की वैल्यू दिया है यहाँ 35 मीटर. अब टीना रन करते हुए 3 राउंड ले रहे हैं, तो पहले एक राउंड का
आप लेंथ फाइंड करो, मतलब क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ वन राउट। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है फाइंड इट्स पेरीमीटर, नहीं, टोटल डिस्टेंस विल शी कवर इन 3 राउंड। फिर डिस्टेंस कवर्ड इन 3 राउंड इक्वल टू जो 1 राउंड का जो आपको पेरीमीटर जो आंसर आया उसको 3 से मल्टीप्लाई करो। फिर आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क, एरिया ऑफ पार्क, पार्क कौन सी शेप में है, स्क्वायर गार्डन। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू साइड इंटू साइड, 35 मीटर इंटू 35 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नाउ 8th क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज 60 मीटर एंड 20 मीटर ब्रॉड, ए फेंस इज पुट ऑल अराउंड इट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस फेंस, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। अब रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, ये भी एग्जांपल हो चुका है, ये सभी एग्जांपल हो चुके पहले एक्सरसाइज में, सिर्फ नंबर चेंज है उसमें। रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, अब रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, खेल का मैदान, उसका लेंथ दिया है 60 मीटर और ब्रेथ है 20 मीटर। अब ए फेंस इज पुट ऑल अराउंड इट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस फेंस, फेंस की लेंथ फाइंड करना है, मतलब पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू 60 प्लस 20, 60 प्लस 20 80, 2 इंटू 80 160 हुआ पेरीमीटर, यानी लेंथ ऑफ द फेंस। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क, अब पार्क कौन सी शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, अब लेंथ दिया है 60 मीटर और ब्रेथ दिया है 20 मीटर, 60 इंटू 20, 6 2 12, 1 और 2 0 लगेंगे, 1200 मीटर स्क्वायर। So in this way you have to complete these 8 examples from exercise 9th one, 9, 10, 11, 12. From there some example which are not able to solve, I will complete that one. Now look that perimeter of square is 32 centimeter. Find its area. अब यहाँ पर क्या पूछा है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है 32 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है यहाँ, एरिया, एरिया है किसका, स्क्वायर का। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड, लेकिन साइड की वैल्यू नहीं है, तो लेकिन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है तो उससे हम साइड की वैल्यू निकालेंगे। सॉल्यूशन व्हाट इट इज गिवन दैट ओनली वी हैव टू राइट। सबसे पहले क्या दिया है, पेरीमीटर, यहाँ से हम पेरीमीटर, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड। अब पेरीमीटर दिया है 32, वहां से हम साइड की वैल्यू निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच गिवन, 32 सेंटीमीटर। दिस वन इज व्हाट गिवन, ठीक है, ये देखिए। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया है तो यही फॉर्मूला लगाने का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू साइड, ये फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया है, देखो यहाँ पर 32, लेफ्ट साइड में लगाने का 32 सेंटीमीटर, अब 4 इंटू साइड, ठीक है। अब हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, इसका मतलब हमें साइड की वैल्यू निकालना है, तो ये साइड की वैल्यू, देयरफॉर साइड इक्वल टू, अब 32 कहा जाएगा ये इसके डिवाइड में, 32 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 4। अब 32 को आप डिवाइड करो 4 से, 4 8 जार 32, ठीक है, 4 8 जार 32, तो इसका मतलब साइड की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। अब लगाने का फॉर्मूला क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, फाइंड इट एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ स्क्वायर, इक्वल टू साइड इंटू साइड, साइड इंटू व्हाट साइड, ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया स्क्वायर, साइड इंटू साइड। अब साइड की वैल्यू हमने फाइंड की है, कितना है 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, 2 बार। नाउ 8 8 जार व्हाट 64 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अंडरस्टूड। So in this way we have to find, do little calculation is there, we have to do calculation and we have to find the value of what it is asked. So note down this one. Now 10th question, what it is given, area of square is 49 square meter, find its perimeter. Area of square given and we have to find it the perimeter of the square. Area of square 49. Now what is the formula for finding perimeter of square, 4 into side, but we did here side value. अब side value कहाँ से find करेंगे, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है तो वहां से फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड, तो यहाँ पर 2 फॉर्मूले लगते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि एरिया भी पूछा है और पेरीमीटर भी, इसलिए। अब स्टार्टिंग में क्या दिया है वहां देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू
हाउ मच गिवन 49 स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं या फिर मीटर स्क्वायर, ठीक है। गिवन ये दिया है। अब ये फॉर्मूला लगाना है आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का, जो दिया है ओ एरिया ऑफ स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया है यहाँ पर 49 मीटर स्क्वायर। अब साइड इंटू साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड में ऐसा भी लिख सकता है साइड होल स्क्वायर। अब हमें साइड होल स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ साइड की चाहिए। अब हमें ये जो 49 है, ये 49 ये किसी का किसी नंबर का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। तो अब कौन से नंबर का है परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। जैसा अभी यहाँ 49 लिखा मैंने, अब 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि 1 प्लेस में 9 है, ये डिवाइड नहीं होता। 3 के टेबल में भी नहीं, 4 के टेबल में भी नहीं आएगा, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 के टेबल में 7 7 जार 49, फिर 7 1 जार 7, मतलब 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ अब मैं लिख सकता 7, क्योंकि 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से आपको क्या आएगा 49, 7 7 जार 49, 7 मीटर। अब मैं यहाँ ऐसा लिख सकता, इसका मतलब क्या है 7 का होल स्क्वायर 49, मीटर का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब साइड होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये ध्यान में रखना है आपको, इफ ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, देन ये लॉज ऑफ इंडाइसिस है। अब दोनों में स्क्वायर स्क्वायर रहा, ये पावर सेम है, या ए रेस टू द पावर 2, यानी ये एक्चुअली एक्सपोनेंट हुआ, ये पावर हुआ। इसको भी एक्सपोनेंट बोला जाता बी को, और उसके ऊपर वाला नंबर को पावर कहते हैं। अब यहाँ पर एक्सपोनेंट अलग अलग है, लेकिन उनका पावर क्या है सेम है, इसलिए ये पावर क्या हो सकता है कैंसिल। इसलिए इफ ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर देन ए इक्वल टू बी, देन ए इक्वल टू क्या होता है बी, लिख सकते हैं। वैसा है अभी 7 मीटर यहाँ पर होल स्क्वायर है और यहाँ साइड होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर 7 मीटर और साइड, ये तो नंबर अलग है लेकिन उनका पावर क्या है सेम है, इसलिए क्या हो सकता है कैंसर। देखो साइड की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7 मीटर इक्वल टू साइड, इसका मतलब साइड की वैल्यू क्या मिली हमें 7 मीटर, साइड इक्वल टू 7 मीटर। अब साइड मिल गए, अब फाइंड कर सकते, क्या फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास है, मालूम है, वो लिखना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? 4 इंटू साइड, ओके, 4 इंटू साइड, ये फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए। अब 4 इंटू, अब साइड की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, क्या मिली थी हमें 7 मीटर। अब 4 7 जार 7 4 जार 28 मीटर, ये 28 मीटर आपके पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गए। सो अंडरस्टूड। सो नोट डाउन दिस एग्जांपल। Now 11th example, area of a rectangle is 140 meter square, find its length if its breadth is 10 meter। क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है 140 मीटर स्क्वायर, और क्या पूछा है यहाँ पर फाइंड इट्स लेंथ, हमें फाइंड करना है, और ब्रेथ की वैल्यू दिया है 10 मीटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया जो दिया है वो लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू हाउ मच गिवन 140 मीटर स्क्वायर, ये देखे एग्जाम्पल में। और क्या दिया है, कुछ दिया है क्या, और ब्रेथ दिया है, और क्या दिया है, किसकी वैल्यू, ब्रेथ की वैल्यू दिया है, ब्रेथ इक्वल टू 10 मीटर, ये भी दिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, लेंथ, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ। सो लेंथ हियर क्वेश्चन मार्क, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, दैट मीन्स। अब क्या दिया है और कौन सा फॉर्मूला लगाने से हम लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो पहले क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो फिर और फॉर्मूला लगाने का, जो देखे रहता है उसी का फॉर्मूला लगाया जाता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल नाउ, लेंथ इंटू, व्हाट इज द फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू क्या, ब्रेथ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है, कितना दिया है 140 मीटर स्क्वायर। सो लेफ्ट साइड में हम उसकी वैल्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल की पुट करेंगे मीटर स्क्वायर। अब लेंथ की वैल्यू हमें तो फाइंड करना है एज इट इज, लेंथ एज इट इज इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ब्रेथ गिवन हियर 10 मीटर, ठीक है।
ये 10 मीटर यहाँ ब्रेथ की जगह हम ब्रेथ के वैल्यू लगाए। अभी हमें लेंथ की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये 10 का जाएगा अभी डिवाइड में, इसके डिवाइड में जाएंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है। प्लस रहने से माइनस में आता था, माइनस रहने से प्लस, डिवाइड रहने से इंटू में जाता, इंटू रहा तो डिवाइड में आएंगे, ठीक है। देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 140 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आएगा 10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर 0 0 कैंसिल होता है वैसा, या फिर 140 को आप 10 से भी डिवाइड कर सकते, 140 10 1 जा 10, ठीक है। 4 माइनस 0 4, 1 माइनस 1 0, अब ये 4 बाकी है। नाउ 10 4 जा 40, 10 4 जा 40, रिमाइंडर वी गॉट 0, मतलब 14। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 मीटर स्क्वायर है और यहाँ पर 1 है, अब 1 मीटर गया, अब तो भी 1 मीटर बचा है, तो इसका लेंथ की वैल्यू क्या रहेगा 14 मीटर, 14 क्या रहेंगे उसकी मीटर, हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 14 मीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 14 मीटर। ये समझ में आ गया? या 2 बार है यम स्क्वायर, जैसा अभी या फिर ये देखो अब यम स्क्वायर यानी मैं यम इंटू यम भी लिख सकता है, और यहाँ पर यम है, एक यम कट गया तो भी एक यम बचता है उसमें, ठीक है, उसका मतलब वो है। सो अंडरस्टूड नोट दिस वन, सो नोट डाउन दिस एग्जाम्पल नंबर 11। नाउ इन दिस एग्जाम्पल नंबर 12 व्हाट इट इज गिवन, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40 मीटर, पेरीमीटर दिया है, इफ इट्स लेंथ इज 12 मीटर, और साथ में क्या दिया है लेंथ की वैल्यू भी दिया है। अब यहाँ फाइंड करना है हमें, फाइंड इट्स ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन, सो व्हाट इट इज गिवन एट फर्स्ट, perimeter of rectangle is given, so write this sentence as it is, perimeter of rectangle की वैल्यू दिया है यहाँ पर, ठीक है, कितना दिया है यहाँ 40 मीटर गिवन, और कुछ दिया है कि देखो इफ इट्स लेंथ, अब लेंथ की वैल्यू दिया है, यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू दिया है, लेंथ इक्वल टू 12 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब क्या स्टार्टिंग में दिया है वही लेने का, एरिया दिया है या पेरीमीटर, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस व्हाट ब्रेथ, ये फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ क्या रेक्टेंगल का, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है, कितना दिया है 40 मीटर, सो ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव टू राइट 40 मीटर, उसकी वैल्यू रखे, इक्वल टू 2 इंटू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ हियर 12 मीटर, लेंथ दिया है 12 मीटर पुट किए, प्लस ब्रेथ तो फाइंड करना है, क्या करना है ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करना है एज इट इज ब्रेथ। इफ यू वांट टू राइट देयर बी शॉर्ट फॉर्म यू कैन राइट दैट वन। अब देखो यहाँ है 40 मीटर इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम एक इसका इससे मल्टीप्लाई 2 इंटू 12, क्या करना है 2 इंटू 12 मीटर प्लस फिर बाद में 2 इंटू बी, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी और एडिशन, ये वाली प्रॉपर्टी है, 2 इंटू इस 2 इंटू 12 मीटर प्लस फिर से बाद में 2 इंटू ब्रेथ, 2 इंटू क्या है ये ब्रेथ, इफ ए, ये फॉर्मूला ए इंटू ऐसा रहा बी प्लस सी, तो क्या होता है ए इंटू बी करना पड़ेगा फिर प्लस ए इंटू सी, वो फॉर्मूला है, यानी यहाँ 2 ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। सो प्रॉपर्टी का नाम भी है इसमें, हायर क्लास में इन 6th स्टैंडर्ड यू मे गेटिंग दैट वन सच टाइप ऑफ एग्जांपल। ओके, नाउ ब्रैकेट ओपन, नो नीड टू पुट ब्रैकेट, नाउ हियर हमने मल्टीप्लाई कर चुके हैं यहाँ पर। अभी क्या होता है देखो, हमें इसको सॉल्व करना है, 40 मीटर इधर का जैसा है वैसा, नाउ 2 इंटू 12 टू 24 मीटर प्लस 2 इंटू ब्रेथ, 2 इंटू ब्रेथ मीन्स 2 ब्रेथ, या फिर 2 इंटू ब्रेथ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब ये 24 मीटर, ये इसके आगे कुछ साइन नहीं, मतलब ये किस में रहेगा, ये पॉजिटिव में। अब ये नंबर को हमें ये साइड लाना,
यानी 40 मीटर। अब प्लस का किस में आएगा, माइनस में, माइनस 24 मीटर इक्वल टू 2 ब्रेक, 2 वाट ब्रेक। अब करो आप माइनस 40 माइनस 24, 40 माइनस व्हाट यू हैव टू डू 24, कितना आएगा यहाँ पर देखो, माइनस करना है। कैन वी सब्सट्रैक्ट 4 फ्रॉम 0? नो, 4 इज ग्रेटर एंड 0 इज स्मॉलर, सो इसको बिगर बड़ा नंबर करना है। 0 काटो, कैंसिल करके 0 लिखो और यहाँ से बोरो करो 1, 10 हो गया। अब 4 के पहले क्या रहेगा वहां 3। नाउ 10 माइनस 4 6, 3 माइनस 2 1, यानी इसकी वैल्यू इस माइनस करने के बाद 16 मीटर आया है इक्वल टू 2 इंटू ब्रेथ, 2 ब्रेथ, 2 इंटू ब्रेथ और 2 ब्रेथ। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, 2 ब्रेथ की या फिर सिर्फ ब्रेथ की, ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करना है। देयरफॉर ब्रेथ इक्वल टू, ये 2 जाएगा डिवाइड में, 16 मीटर डिवाइड बाय 2। अब 2 का टेबल, या फिर 16 को 2 से डिवाइड करो, 16 को 2 से, क्या आएगा इसका आंसर, 2 8 जा 16, ठीक है। यानी इसका मतलब ब्रेथ की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 8 मीटर, 8 या मीटर है तो मीटर। देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 मीटर। So in this way we have to find the answer. So breadth of rectangle equal to how much, 8 meter. So understood? So note down this example number 12. Now example number 12 up to over. Now 13. Draw the net of a cube of side 2 centimeter. Use your scale. Such type of example already over in exercise number 6.6 में हो चुका था। ऐसा करना है, नेट ऑफ क्यूब निकालना है, यानी पूरे साइड की वैल्यू क्या रखना है आपको, 2 सेंटीमीटर। 14 में पूछा है ड्रॉ नेट ऑफ क्यूबाइड 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी लेंथ निकालना है 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ब्रॉड मतलब हाइट, ब्रॉड मतलब ब्रेथ एंड 1 सेंटीमीटर हाई, हाई मतलब हाइट। यूज योर स्केल, यानी वो निकालना है क्यूबाइड का, ठीक है। नाउ नेट ऑफ क्यूबाइड निकालना है वहां पर 14 में। और लास्ट में पूछा है ड्रॉ फ्रंट साइड एंड टॉप व्यू ऑफ ए डाइस। आपको निकालना है डाइस। सबसे पहले क्या निकालना होगा, डाइस। डाइस निकालने के बाद ये वाला, ये डाइस निकालना है। फिर इसके क्या है, फ्रंट आगे वाला पार्ट, साइड साइड वाला पार्ट और टॉप, टॉप यानी ऊपर वाला पार्ट, यानी तीनों पार्ट अलग अलग बताना है। सो अंडरस्टूड। सो लेट अस प्रैक्टिस 6.8 फर्स्ट सेकंड, 6.8 ओपन योर टेक्स्ट बुक, 6.8 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। एक एक एग्जांपल मैंने करके दिया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एग्जांपल करना है, और एक्सरसाइज के 1 to 8 एग्जांपल। दिस विल बी होमवर्क फॉर यू, सो ट्राई टू कंप्लीट दिस वन।